سب کو یوم جمہوریت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وہی دن ہے جب بسوں انگریزوں کی غلامی میں رہنے کے بعد آزادی کی نعمت حاصل کر کے ہمارے رہنماؤں اور ماہرین قانون نے ملک کے لیے اپنا نیا آئین تیار کیا، جس کے مطابق بلا مذہب و ملت، رنگ و نسل اور ذات پات کے امتیاز کے بغیر ہر ایک ہندوستانی کو برابر کے حقوق میسر ہونا شروع ہوا۔ 26 جنوری 1950 کو عمل میں لائے گئے اس آئین نے ہمارے ملک کو ایک خود مختار جمہوریت کی حیثیت بخشی، اور یہ دن ہمیں اپنے ملک کو ترقی اور خوشحالی کی نئی بلندیوں پر لے جانے کا حوصلہ دیتا ہے، جس کے لیے حب الوطنی، قربانی اور انتھک کوشش کرنے کا جذبہ از حد ضروری ہے۔ اور یہی وہ خوبیاں تھیں جن کی بنا پر ہمارے عظیم رہنماؤں نے اپنے عاش کو ہمارے کل کے لیے قربان کر دیا اور ہمیں آزاد اور خوشحال ملک میں سانس لینے کا موقع فراہم کیا۔ اس لیے یہ مبارک دن ان کے خوابوں کے سچ ہونے کی علامت ہے، اور آج وہ انتہائی خراج عقیدت کے حقدار ہیں۔ ہمارے ان بے مثال افراد کے لیے صحیح معنوں میں خراج عقیدت تبھی ممکن ہوگا جب ہم عوام دوستی اور حب الوطنی کے ان کے اصولوں پر چلنے کے لیے آمادہ ہوں، اور ہم سب ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خاطر اپنے اندر احساس اور محنت کا جذبہ پیدا کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ملک اور سماج میں جمہوریت اور مساوات کے اصول عام کریں۔ دوستو، 26 جنوری کی اہمیت روز روشن کی مانند آیا ہے۔ یہ دن قوم کی آزادی، یکجہتی اور سلامتی میں ہمارے اعتقاد کی علامت ہے۔ اس کے ساتھ ایک ایسی شاندار تاریخ جڑی ہے جس پر ہر ایک ہندوستانی کو فخر ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں یہ دن ہمیشہ یاد رہے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے دن قومی ترنگے کے تلے ہم سبھی کو یہ عہد کرنا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک فرد حب الوطنی اور انسان دوستی کے جذبے کے ساتھ اپنے گاؤں، اپنے ڈسٹرکٹ اور اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ آج کی اس مبارک دن پر میں ملک کے ان جانباز سپاہیوں اور حفاظتی دستوں کو بھی سلام کرتا ہوں، اور ان کو الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہمارے ملک کی سلامتی کو مستحکم بنانے میں دن رات جٹے ہوئے۔ اس دن کی مناسبت سے میں یہاں موجود کونسل کے اصولیابیوں اور دیگر ترقیاتی سرگرمیوں سے متعلق چند باتیں آپ سب کی خدمت میں رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہماری کونسل کا ہمیشہ سے ہی یہ عزم رہا ہے کہ ہم ضلع تربیت کی تعمیر و ترقی کے عمل میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ اس ضمن میں ہم نے ہر ایک شعبے میں مؤثر اور مفید نتائج برآمد کیے ہیں، اور یہ سلسلہ بدستور جاری و ساری ہے۔ جہاں ایک طرف بے روزگاری کے خاتمے کا عمل جاری ہے، وہیں دوسری طرف صحت، سیاحت، پشو پالن، روڈ ٹرانسپورٹ، دیہی ترقیاتی کے علاوہ دیگر شعبوں میں بھی ہمیں کافی پیش رفت ملی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آنے والے وقت میں بھی ہر ایک شعبے کو مزید مستحکم کرنے کی غرض سے بہت سارے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ضلع کے مختلف محکمہ جات میں
खाली आसामियों को पूरा करने की गरज से पढ़े लिखे नौजवानों की भर्ती का सिलसिला जिसकी हमने शुरुआत की थी, इसके तहत गुज़श्ता 5 महीनों के अंदर 1200 खाली आसामियों में से 400 से ज्यादा आसामियां पूरी की जा चुकी हैं, जबकि तकरीबन 120 से ज्यादा खाली आसामियों की भर्ती के लिए इम्तिहानात का अमल बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा। शोबा सियाहत जो हमारी काउंसिल की तरजीहात में शामिल है, इसके तहत जिले भर में अस्पतालों और तबी सेंटरों को मजीद मुस्तकम और फाल बनाकर आवाम अन्नास को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीन सहूलियत फराहम करने की कोशिश की जा रही है। कोलकाता में वाकई 200 बिस्तरों वाली अस्पताल, जिसके लिए मरकजी सरकार ने STF के तहत फंड्स की फराहमी अमल में लाई थी, और जहां फंड्स की कमी की वजह से काम रुका पड़ा है, हमें उम्मीद है कि यहाँ भी जल्द काम शुरू होगा, क्योंकि इस सिलसिले में फंड्स की फराहमी का मसला हमने हाल ही में अपने दिल्ली दौरे के दौरान मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब अरुण जेटली साहब के साथ उठाया, जिन्होंने बहुत ही जल्द फंड्स की वापसी के हमें यकीन दिलाया। इस अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन की गरज से 1 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से जरूरी साजो सामान की मुकम्मल हुसूलियात भी अमल में लाई जा चुकी। अलावा आज़ीन डिस्ट्रिक्ट प्लान इनोवेशन और दीगर रियासती और मरकजी मानत वाली स्कीमों के तहत लगभग 38 करोड़ रुपये की लागत से कई अहम तबी मराकज़ आम नाज को वक़्फ़ कर दी गई है, जबकि कुछ पे काम सरोगत से जारी है। दोस्तों, शोबा सियाहत को तेज कर तरक्की दिए जाने के साथ साथ सयाहत के शोबे को भी हर मुमकिन मुस्तहकम बनाए जाने पर भी हमारी लगातार नजर है। हमारी काउंसिल ने जिले के को सयाहत के नक्शे पर एक अहम सयाहती मरकज के तौर पर देखा है, और इस सिलसिले में यहाँ के सयाहती मुकामात को जल्द नजर बनाने के साथ साथ हमने इन मुकामात पर सयाहों की सहूलियत के लिए बुनियादी ढांचे का भी किया। हमें ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि सकाफती और सयाहती एतबार से हमारा जिले का भी पूरे दुनिया में एक अनफर्ड हैसियत रखता है, लेकिन बदकिस्मती से इसे आज तक अच्छी तरह से मुल्की और गैर मुल्की सतह पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे काउंसिल ने एक जाने मंसूबा तब्दील किया है, जिसके तहत करगिल को प्रोजेक्ट करने के तरीके का अपनाए जा रहे हैं, जिससे जहाँ एक तरफ करगिल की माशी तरक्की होगी और दूसरी तरफ सयाहत के शोबे में यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम होंगे। मज़कूरा वाला शोबों को मुस्तहकम बनाए जाने के साथ साथ हमारी काउंसिल जिले के मुख्तलिफ इलाकों में इधर बड़ी सेक्टर के तहत रास्तों, पुलों, स्कूलों और दीगर तामीरात को बराए काम लाने के अमल में पहुंचा है। मुझे आप सबको बताते हुए न्याय की खुशी हो रही है कि CRF के तहत मरकजी सरकार ने चंद रोज पहले जिले में रोड और ब्रिज की तामीर उन्हें मजीद मुस्तहकम बनाने की वजह से लगभग 55 करोड़ की लागत से 5 अहम प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जिनमें लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से बखौल रोड अपग्रेडेशन, कंट्रोल में 1 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से मोटर ब्रिज की तामीर, लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से दास से और छुस्कोट रोड की तामीर, 9 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से हरुमसा कश्मीर रोड की तामीर अपग्रेडेशन और 13 करोड़ लाख रुपए की लागत से बदून कच्चा रोड की अपग्रेडेशन शामिल है। मैं यहाँ मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब का दिल से हमें गहराई से शुक्रिया अदा करना अपना फर्ज समझता हूँ, जिन्होंने अपने हालिया खुसूसी पैकेज के तहत जोजिला टनल की तामीर के लिए 10,000 करोड़ रुपए
फराहम करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में हमारे काउंसिल ने सयाहत और दीगर शोबे और सैलाब से हुए नुकसानात की भरपाई का मसला भी वज़ीर आज़म की ख़ुसूसी पैकेज में शामिल कराए जाने की अपील की है। ज़िले करगिल के चंद अहमियत के हामिल और दीगर मसाइल के सिलसिले में मैंने अपने साथी एसडीपी काउंसिलर साहिबान के साथ चंद रोज कबल मरकजी वज़ीर खजाना जनाब अरुण जेटली के साथ मुलाकात करके तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौके पर हमने जिले में फंड की कमी की वजह से मुख्तलिफ शोबों में रुके पड़े तरक्याती कामों को शुरू करने के लिए फंड फराहम करने की उनसे पुरजोर गुजारिश की। हम अपनी खुशकिस्मती समझते हैं कि जनाब अरुण जेटली साहब ने हमारे मसाइल और मामलों को हमदर्दाना तरीके से सुनकर बहुत ही जल्द फंड गुजार करने की अपनी जवानी जिससे जिले में तरक्याती सरगर्मियों का एक नया अमल हमने दौरान दिल्ली वज़ारत दिफा ट्रांसपोर्ट टेक्सटाइल हाईवेज और दीगर वज़ारतों के आला अहदेदारों के साथ तफसीली गुफ्तगू करके चंद अहमियत के हामिल मसाइल को पूरी तौर हल करने की सख्त वकालत की है और इस सिलसिले में उन्होंने हर एक मसले की बरवक्त सुनवाई की कि हमें यकीन दहाई कराई है। इन मसाइल में दुर्घटना प्लाटों को खाली कराया जाना, करगिल के जवानों को फौज में भर्ती के ज्यादा मौके फराहम करने के गरज से करगिल स्कॉट के नाम से एक अलग रेजिमेंट का क़याम, फौजी भर्ती रैलियों में करगिल के नौजवानों को बराबर के मौके फराहम करना, करगिल से जम्मू श्रीनगर के दरमियान ट्रेन 32 कोरियर सर्विस की तसल्ली बख्श सर्विस आयल 76 खिलाफ दस्तियाबी जैसे मामला काबिल जिक्र। इसके अलावा हमने महकमा रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के साथ और सोनोवार मनु की तरफ से मुतवज़्ज़ा योजना टनल पर जल्द काम शुरू करना, ज़ियारत के तहत जिले करगिल में बड़ी सड़कों की तामीर, जिले में कौमी शहरात की तामीर की कायदों में जिले के ठेकेदारों को रियायत और दीगर अहम मसाइल उठाए हैं जिनको ताज़ी बुनियादों पर पूरे करने की यकीन दहाई कराई है। जिले करगिल में पश्मीना प्रोडक्ट की अहमियत और अफवादियत को मद्देनजर रखते हुए इस सनत की तरक्की की गरज से जिले में एडवांस पश्मीना सेंटर और ट्रेनिंग यूनिट कायम करने के साथ साथ इस सनत के मुताबिक नौजवानों को खुसूसी तरबियत दिए जाने पर जोर दिया है। इसके अलावा जिले करगिल में बिजली की मसाइल को हल करने और जिले को बिजली के शोबे में हमारे काउंसिल खुसूसी तवज्जो मरकूज किए हुए में हमने मरकजी वज़ारत बराए ऐसी तवानाई की मदद से करगिल केरला के जरिए रिन्यूएबल एनर्जी के कुछ अहम प्रोजेक्ट जिन पर काम बंद पड़ा था उन पर तेजी से काम शुरू करके बिजली के असर और वसाइल पैदा करने की तरफ तवज्जो और यहाँ मुझे ये बताते हुए निहायत खुशी हो रही है कि इस साल 3 प्रोजेक्ट कमीशन किए जाएंगे और इनसे पावर जोड़ा जाएगा। इनमें एरस द्रास जमीन प्रोजेक्ट और संभव प्रोजेक्ट शामिल हैं। अलावा हमें 5 मेगावाट वाली रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट की मंजूरी मिल चुकी है और हमने इसकी सर्वे भी मुकम्मल कर दी है। ये प्रोजेक्ट पूरे करगिल डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा और इसकी शुरुआत करगिल टाउन से की जाएगी। इसकी खास बात यह होगी कि इसके जरिए हर एक कुंडे को जरूरत के मुताबिक सब्सिडी पर सोलर पावर मुहैया किया जाएगा। हमारी काउंसिल जिले करगिल के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की शोबे में 2700 मेगावाट का एक 18 मेगा प्रोजेक्ट भी मंजूर कराने में कामयाब हुआ है, जिसके तहत बुनियादी फेज में 25 करोड़ रुपए की लागत से 20 मेगावाट का प्रोजेक्ट नस्ब किया जाएगा, जिसके लिए हमने सर्वे और जमीन का निशानी का अमल
मुकम्मल कर दिया है। इसके साथ साथ जिले में कम बिजली प्रोजेक्ट की तामीर के लिए हमने 125 करोड़ रुपये मंजूर करवाए हैं और दूसरी तरफ सेकंड फेज में सोलर थर्मल वाइंड और हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 210 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल चुकी है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जिले करगिल में हमारी काउंसिल पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ के अवाम नास को अपने हकूक़ दिलाने में कोई कसर बाकी न रहे। साथ ही साथ हम वादामंद हैं कि हम जिले करगिल के मजबूत और मुस्तहकम बनाने के अपने काम को और बेहतर करें। मुख्यमंत्री ने अपने साथी एग्जीक्यूटिव काउंसिलर और काउंसिलर साहिबान के मामले में मशहूर हूँ जो अपनी कोशिशों और ताउन से मेरे हौसला अफजाई जारी रखे हुए हैं। ये उनका अंदर ताजा और मुआवनताना ताउन और हमदर्दी का ही नतीजा है। आज हम जिले में तरक्याती सरगर्मियों को मज़ीद बेहतर करने में कामयाब हो रहे हैं। यहाँ में अपने डिप्टी कमिश्नर और CEO हसन खान साहब और तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरों का शुक्रिया अदा न करूँ तो नाइंसाफी होगी, क्योंकि उनका हमारी गुजारिशात पर हमेशा बदस्ते लबे हाजिर रहने से गरीब आवाम की खिदमत मुमकिन हो रही है, जिसका नतीजा तरक्याती कामों के तेज़तर अमल आवारी से पता चलता है। आखिर में मैं करगिल के अवाम से इससे वजह रखता हूँ जिले करगिल को खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाने में हमें ताउन पेश करें, क्योंकि जब तक इस काउंसिल को अवाम नाज का ताउन हासिल न हो तब तक मुश्किलात का हर वक्त गुजारा मुमकिन न होगा। मेरी दिली दुआ है कि खुदा हम सबको कामयाबी व कामयाबी अता फरमाए। आमीन।